Today we will solve question number 9 of exercise 14.2 chapter statistics class 9th mathematics. Again we are discussing the same topic, that is how to construct, how to draw a frequency distribution table, how to represent the given data on a frequency distribution table by making use of telemarks. Now question number 9, a company manufactures car batteries of particular type. कोई कंपनी है वो कार बैटरीज बना रही है. The lives in years of 40 such batteries were recorded. For example, life of a battery is 2.6 years. Then life of this battery is 3.0 years, 3.7 years. These are the lives of batteries in years. So हमने फर्स्ट जो कॉलम रखा लाइफ ऑफ बैटरीज इन ईयर्स, सेकेंड वन टेलीमार्क्स, थर्ड वन फ्रीक्वेंसी. Construct a group frequency distribution table for this data using class interval of size 0.5. अब class interval का size कितना क्या बना है 0.5. तो हमने ऐसा ही किया. फर्स्टली हमने फाइंड किया यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को. मिनिमम वैल्यू इज आई थिंक 2.3 और जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 4.6. सो 2.3 के लिए अगर हम 0.5 क्लास साइज लेके चलेंगे, क्लास लिमिट विल बी 2.0 to 2.5. 0.5 क्लास साइज है. This is lower limit, this one is upper limit. Then 2.5 to 3.0, maximum value is 4.6. So last जो हमारे पास limit होगी, last interval जो होगा that is 4.5 to 5.0. इसमें 4.6 fall करेगा. This is our frequency distribution table. Now how to represent the data we know. Firstly 2.6. 2.6 कहाँ fall करेगा? It lies between 2.5 and 3.0. इसी range में fall करेगा. टेलीमार्क लगाएंगे. देन 3.0 से 3.5 में फॉल करेगा. 3.7 ये बात फिर याद रखनी है आपको, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन सच टाइप ऑफ डेटा. अपर लिमिट फॉर एग्जांपल अगर हमें 2.5 को रिप्रेजेंट करना होगा, सो 2.5 को हम यहाँ नहीं यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पे 2.5 लोअर लिमिट होगी. थर्ड वन इज 3.7. 3.7 लाइज बिटवीन 3.5 एंड 4.0. Then 3.2 between 3 and 3.5. 2.2, this one is the minimum value. 4.1, 4 to 4.5, 3.5. फिर देख ले एक बार, 3.5 upper limit है, 3.5 lower limit है. So upper limit is not included, that's why 3.5 यहाँ represent होगा. 3.8, this one. 3.2, 4.6, 4.5 और 5 के बीच आएगा ये. आफ्टर दैट 3.7, 3.5 to 4, 2.5, 4.4, 3.4, 3 और 3.5 के बीच 3.5, बिटवीन 3.5 एंड 4. फिफ्थ वन है तो फिफ्थ वन को आप क्लोज करें या ऐसे करके क्रॉस कर दें. ग्रुप ऑफ 5 टेलीमार्क्स हमारे पास कंप्लीट हो गया. देन 3.2 बिटवीन 3 एंड 3.5, यहाँ 3.2 आ जाएगा. 3.9, 3.5 to 4, 3.2, 3 to 3.5, अगेन 3.2, सेम क्लास इंटरवल में 3.1 ये भी यहीं फॉल करेगा. 3.7, 3.5 to 4, 4.5, 4.5 भी यहाँ अपर लिमिट है, लोअर लिमिट में इसको हम यहाँ टेलीमार्क लगाएंगे. 3.3, 3.4 ये भी यहीं फॉल करेगा. 3.5, 2.9, 2.5 to 3, 4.6 लास्ट लिमिट, लास्ट क्लास इंटरवल. 2.3 कहाँ फॉल कर रहा है? बिटवीन 2 एंड 2.5. 3.0 दिस वन. 3.8, 3.2, 3 to 3.5, 4.3, 4 to 4.5, 3.2 खुद सोचना है. 3.2 कहाँ फॉल करेगा? 3 और 3.5 के बीच कहीं 3.2 आएगा. दैट्स वाई यहाँ आपको टेलीमार्क लगाना है. 3.4 in the same interval
2.8, then 2.6, 2.6, 2.5 और 3.0 के बीच फॉल करेगा. 3.5, 4.2, 2.9 and then 3.6, 3.6, 3.5 to 4.0 यहाँ फॉल कर रहा है. Now frequencies, so काउंट करेंगे तो 2, here 5 plus 1, 6, then 5, 10 and 14, 5, 10, 11, after that 4 and then 3. Now we will add, total is equal to 40. If we see the question, this is clearly mentioned that life of 40 batteries. It means total number of batteries are 40. So यहाँ पे total हमारा 40 ही आ रहा है. It means हमने कोई भी value यहाँ से skip नहीं की है. So this one is the frequency distribution table. Now question based upon this table. Construct a grouped frequency distribution table. No question is asked. यहाँ हमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है. इट मीन्स ये हमारा इतना ही कंक्लूड हो जाएगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 भी हमें सॉल्व करना है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे. सेम ही टेबल रखेंगे. Okay, this one. Now question number 8. Thirty children were asked about the number of hours they watched television programs in the previous week. 30 children से डेटा कलेक्ट किया गया कितने टाइम तक, फॉर हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टेलीविजन प्रोग्राम्स, कितने घंटे तक वो टीवी देखते हैं. द रिजल्ट्स वर फाउंड. रिजल्ट्स हम यहाँ मेंशन कर देते हैं. What are the results? 1, 8, for example 1 or 8 hours. 1 वीक के लिए ये डेटा है कि 1 वीक में कितने टाइम तक टेलीविजन देखा. This one is the data. एक बार फिर सुन लें. 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. पिछले हफ्ते 7 days में किस स्टूडेंट ने कितने टाइम तक टीवी प्रोग्राम्स को देखा. दिस इज द डेटा. फॉर एग्जांपल ये कोई स्टूडेंट है, इसने 1 वीक में 1 और टीवी प्रोग्राम्स देखे. इसने 1 वीक में मतलब 7 days में 6 आवर्स तक टीवी प्रोग्राम्स देखे हैं. टोटल मिला के 7 days का डेटा है ये.
Then make a frequency distribution table for this data taking class width 5 and one of the class intervals as 5 to 10. अब class width यहाँ पे कितनी है 5. एक बात का और ध्यान रखना है, class width means class size, और आपको जो हिंट गिवन है क्लासेस का, क्लास इंटरवल्स का, वो ये है 5 to 10. नाउ 5 to 10 डजंट मीन कि आपको 5 से ही यहीं से स्टार्ट करना है. आपको फिर भी यहाँ पे मिनिमम, बिकॉज देखिए यहाँ पे आपको 1 वैल्यू भी रिप्रेजेंट करनी है. अब 1 5 और 10 के बीच तो फॉल नहीं करेगा. इट मीन्स आपको यहाँ से सिर्फ हिंट लेना है कि आपको क्लास साइज कितना लेके चलना है. क्लास साइज 5 to 10 मीन्स क्लास साइज शुड बी 5. अब मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा आपको क्लास इंटरवल्स को कहाँ से स्टार्ट करना है. दैट डिपेंड्स अपॉन यू, दैट डिपेंड्स अपॉन द डेटा गिवन. तो इस हिंट के अकॉर्डिंगली आपको क्लास इंटरवल स्टार्ट नहीं करनी है. ओके, तो ऐसा करते हैं, ये वैल्यू भी चेंज होगी. यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक. ये बात जरूर समझनी है कि ये पूरे वीक की कैलकुलेशन है. 1 वीक में किस स्टूडेंट ने, किस बच्चे ने कितने टाइम तक टीवी देखा है 1 वीक में, ना कि डेली. बिकॉज ऐसा भी नहीं है कोई स्टूडेंट ये मान के चल ले कि यहाँ 8 आवर्स टीवी देखा है, ये यहाँ 15 आवर्स टीवी देखा है, 15 आवर्स टीवी यहाँ 17 आवर्स टीवी देखा है. तो ऐसा भी नहीं है कि डेली प्रोग्राम नहीं है, ये वीकली कैलकुलेशन है. ओके, नाउ मिनिमम वैल्यू इज 1, तो यहाँ ये फॉल नहीं करेगी. दैट्स वाई आपको 0 to 5 लेके चलना है. आप स्टार्ट करेंगे 0 to 5. ओके, इसमें 1 भी फॉल कर जाएगा मिनिमम वैल्यू के लिए, तो ठीक है. अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम यहाँ पे 17 है. दैट्स वाई 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20. 17 जो वैल्यू है वो 15 to 20 क्लास इंटरवल में फॉल करेगी. दैट्स वाई हम यहीं तक इंटरवल्स लिखेंगे. नाउ प्रोसीजर इज सेम बाय मेकिंग यूज ऑफ टेली मार्क्स. 1, अब 1 कहाँ फॉल करेगा, 0 और 5 के बीच कहीं. दैट्स वाई इस इंटरवल के सामने टेली मार्क्स. 6 फॉल्स इन दिस इंटरवल. 5 to 10, 5 और 10 के बीच फॉल करेगा. 2, 3, 5, 12, 10 to 15 में अगेन 5, 8, 5 to 10 में 15, 15 to 20, 1, 0 to 5, 17, last one 6, 5 to 10, then 3, 0 to 5, 2, 0 to 5, 8, 5 to 10, 4, 0 to 5, 8, again 5 to 10, 10, ये फॉल करेगा 10 to 15 में. 3, 0 to 5, 4, 0 to 5, then 12, 10 to 15, 8, 5 to 10, 5, again 5 to 10, 9, 5 to 10, 6, 5 to 10, 8, 5 to 10, 7, 5 to 10, 14 फॉल करेगा 10 to 15 में. 2, 0 to 5 and 12, 10 to 15. Tally marks are complete. Now frequencies 5 plus 5, 10. 5, 10, 11, 12, 13. This one is 5 and 2. If we add, we get total is equal to 30. And this one is the data of 30 children. Okay. We are solving question number 8. How many children watch television for 15 or more hours a week? अब कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15
या फिर मोर देन 15 आवर्स अ वीक टेलीविजन प्रोग्राम्स को देखा। देखिए दिस वन इज लेस देन 15, ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये लेस देन 15 के लिए। 0 to 5 आवर्स लेस देन 15 है, 5 to 10 आवर्स लेस देन 15 है, 10 to 15 मीन्स लेस देन 15। नाउ 15 और मोर मीन्स दिस वन। सो कितने ऐसे चिल्ड्रन है? ओनली 2 चिल्ड्रन। ओके, आप इसका आंसर देंगे सेकेंड पार्ट का। 2 children watch TV for 15 or more hours a week. This one is the data representation by making use of frequency distribution table. Question number 8 is complete, question number 9 is complete, and with this video our exercise 14.2 is also complete. Thank you.